All right, welcome class. Let me share my screen. Here we go. Okay, can all of you see my screen now? Yes. Yep. All right. So sorry about the a big delay in the morning. My computer just didn't want to start, but here we are. So what we are going to talk about today is what is ServiceNow used for. We are not going to talk about ServiceNow at all today. We are going to talk about three things: ITSM, workflow, and BPM. So let's get, and we will cover the key terminology which is used everywhere across this field. You are going to be entering the field of ITSM, workflow, and BPM. So, what are the key terms that are going to be used? So, that is the whole objective today. So, when tomorrow, from tomorrow, when we start talking about ServiceNow, and you will hear this terminology, it will not be new to you. So, let's start with a story or an example. So I'm going back, and whenever you want to interrupt me, you want to ask me questions and all that, feel free to do that. Okay, just unmute yourself and look for a pause and start talking. Okay. So here is a story from 10 years ago. So 10 years ago, my daughter was 10 years old, and we got her a dog. So in this case, my daughter is the user, and the dog is what you will start using the terminology from tomorrow. My daughter is the user. The dog that she got was the asset. Asset is something that the user is going to use. With me so far? Just say yes, no, somebody. Guys, this will be an interactive session just because what will happen, we'll not understand whether you really understood the concept of whatever we are teaching to you. So just be vocal, and nobody is going to basically question you about why you're asking these questions. We are fair and open. This should be a kind of conversation which should help you, all of us, correct? And That's the point of a live lecture, right? Otherwise, you could be watching. Exactly. Correct. All right, with me so far? Why can't I see the users? Okay. Or at least type in chat. That is also okay. Yes, sir. Okay, thank you very much. At least somebody responds, so I know it is getting through. So far, what I've said, 10 years ago, my daughter was 10 years old, and she got a dog. My daughter is the user. The dog is the asset. Asset is something that the user uses. All right. Now, what happened? The dog was, of course, young and puppy and very frisky. Somebody came to admit them. No, I've joined. Oh, okay. Yeah. So the dog was young, the dog was frisky and all that. One day, what happened? The door to my flat somehow got left open, and the dog's name is Chelsea. Chelsea ran away. Okay. Chelsea ran away. Then what did my daughter do? So what did the user do? The user came to me or my wife, Daddy, Mummy, Chelsea has run away. So what has happened? Something has gone wrong with the asset. The user is my daughter, the asset is my dog, and something unusual has happened with the asset. Which means what has happened? Can anybody guess the word? What am I going to use the terminology? Raise an incident. Absolutely. Who said that? Shubham. Hey, good. So that's an incident, right? Something unusual has happened with the asset. So that's an incident. And the user, my daughter, came to me and my wife
saying that something unusual has happened. Chelsea has run away. What is the terminology that we would use for that? Everybody can answer except Shubham, Ashfaq, and Yunus. Anybody? Come on, come on, come on, come on. Nope. Okay, Shubham, you have a word for this? Incident. No, incident to ho gaya. Okay, now the user has come to me that this has happened. What is that called? Okay. Complaint? Yes. I mean, thank you. Who said that? Okay. I mean, if you're not answering on chat, if you speak, just let me know your name. All right. Shahrukh says ticket. And who said complaint? Me, Shreyas. Shreyas. Yeah, good. Great. So yeah, it is a complaint. So it can be a complaint, it can be so many things and all that. A catch-all terminology for all of that, as Shahrukh said, is a ticket. So again, repeating, user, my daughter, noticed something unusual, that is an incident with the asset, which is the dog, and she raised so that's an incident, and she raised a ticket. Okay, so far so good. Yes, sir. Okay, so who did she raise the ticket with? She raised the ticket with me and my wife. I don't expect you to know this term. I would be very, very surprised if you know this term. So she raised this ticket, or she raised this complaint, or she raised this incident, whatever, reported this incident to me and my wife. Me and my wife collectively are called something in the world of ITSM and ServiceNow and all that. Any guesses? I would be very surprised if anybody knows. Service provider? Service provider. Logically good answer, but that's not the term that is used. Okay. Anybody else? Okay, but logically, yes, we are the service providers. In ServiceNow or in ITSM or whatever, we would be called a resolver group. Okay, so let me do a quick recap of what terms have we used. Let me click on the participants. What is the participants list? Yeah. Asim, give me one terminology that we've used so far. Anyone? So, Sanjit, can I take an opportunity and help them? Basically, what is resolver group and why it is so important in service management area? So typically, and I just wanted to give a layman example. The reason why there are some technical terminology, all of them may not understand, knowing the fact, knowing the background, right? And I can switch between Marathi to Hindi as well in between. So that will help some of those students who are not coming from IT background as well, correct? So generally, काय होतं आपण जसं मी परत I'm coming back to Dish TV example, correct? तर Dish TVच्या एक्झाम्पल मध्ये काय होतं की आपण साधारण एक सर्व्हिस रिक्वेस्ट रेज केली किंवा इन्सिडेंट आला, काही प्रॉब्लेम आला, तर तुमच्या घरी माणूस येतो, बरोबर? तो माणूस असतो, तो कुठला माणूस असतो? टाटा स्कायचा. पण टाटा स्काय मध्ये वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहेत, बरोबर? डिश टीव्ही असेल किंवा तुमच्याकडे लँडलाईन असेल टाटाचं, समजा काही एक सर्व्हिसेस तुम्ही मल्टिपल घेत, तर प्रत्येक डिश टीव्ही मध्ये पण वेगवेगळे एरिया असतात. तुमच्या रिसेप्शन मध्ये समजा डिश टीव्हीचा रिअली इश्यू असेल, त्याचं अँटिना डिरेक्शन वगैरे, तर त्यासाठी तुमच्या एरियामध्ये काही सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स असतात, बरोबर? टाटा स्काय काय करतात, तुमचा आलेला प्रॉब्लेम ते सर्व्हिस प्रोव्हायडरला पास ऑन करतो, म्हणजे त्यांच्याकडे ही इन्फॉर्मेशन देऊन टाकतो की हा माणूस यांच्या घरी डिश टीव्ही चालत नाही, त्यांच्याकडे जाऊन बघून या म्हणून, बरोबर? आर यू गेटिंग मी? येस.
सो जो हा माणूस असतो ज्या टीम कडून येतो, हा माणूस हा रिझॉल्व्हर ग्रुप असतो. ओके, हा माणूस जो टीमचा पार्ट असतो तो रिझॉल्व्हर ग्रुप आहे. म्हणजे ज्यावेळेस तुमचा एखादा इश्यू, जसं आज म्हटलं की तिकीट रेज केलं, कंप्लेंट रेज केली, तर त्याच्यात मल्टिपल डिपार्टमेंट्स असतात. तर एखाद्या डिपार्टमेंटला एखादी तिकीट असाइन करणं किंवा त्यांना काम देणं है ना, तर डिपार्टमेंट इट सेल्फ इज अ रिझॉल्व्ह ग्रुप इन शॉर्ट. थोडक्यात म्हणजे अगदी त्याला भरपूर म्हणजे टेक्निकली दुसरे काही गोष्टी असतात, टेक्निकल निटिग्रिटीज असतात, बट just to simplify this, the department is a self-resolve. Over to you, Sanjit. Yeah, thanks. Sorry to it. Yeah. Thanks. So again, class, get used to this. थोडी सवय व्हायला लागेल तुम्हाला, कारण मी आणि अशफाक दोघांचं टीचिंग स्टाईल हेच आहे की मध्ये मध्ये आम्ही तुम्हाला वी विल आस्क यू क्वेश्चंस इफ यू डोंट आस्क क्वेश्चंस. सो असीम का दुर्भाग्य ये है कि उसका नाम ए से चालू होता है. तो बता भाई असीम, कोई एक टर्मिनोलॉजी बोल जो हमने अभी आज यूज की अभी तक. असीम, चैट पे बता दे, प्रॉब्लम. चैट पे बता दे. You can speak in Marathi, Hindi, any language. There is no barrier. Hello. Okay. Asim, I'll come back. हाँ, तो Asim, you are on chat. Good. तो give me one terminology which we've used so far. क्या क्या terminology अभी तक हमने यूज की है? Let's move to next, Sanjit. I think this is the first lecture for them. No problem. Yeah. Ayan, some term that we've used so far today. Resolver group. Okay, very good. What is resolver group? Quickly बताओ. जो टिकट जिसके पास रेज होती है वो जिस टीम को असाइन होती है, आया जिस टीम पर. हाँ, जो टीम तुम्हारा टिकट रिजॉल्व करेगी, करेक्ट, जो टीम असाइन करने के बाद जो टीम टिकट रिजॉल्व करेगी, दैट्स अ रिजॉल्वर बेसिकली. So every service has some which go basically है ना, some area where it should be going, correct. So for example, टाटा स्काई का टिकट कोई मैं उसमें जो नेटवर्क से रिलेटेड इश्यू है, मैं कोई है ना फील्ड सपोर्ट के टीम को नहीं दे सकता जो गड्ढे गन रहा है, गड्ढे निकाल रहा है, करेक्ट. तो गड्ढे निकालने वाला टीम अलग है जो केबल लिंक के लिए रहेगा, और जो नेटवर्क रिलेटेड और जो सैटेलाइट रिलेटेड इश्यू रहे उसका टीम अलग है. तो देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स. तो जो डिपार्टमेंट को टिकट असाइन होता है, दैट्स रिजॉल्व. प्लीज ओवर टू यू संजय. सॉरी, एंड जस्ट वांटेड Yeah. So I will go to. I'm going to skip. All right, I'll ask everybody. So Fatima, any terminology that we've used? You can start taking notes. So many of those words you are not using in a day-to-day life. So if that was my intention as well, so that exactly people are just not passively listening. Okay, let me go to Pooja. Any terminology that you've picked up? Tell us the terminology, define it, and tell us the name of the terminology, maybe in Japanese. Actually, not in Japanese. Incident, if something bad or unusual happens with the asset. Oh, very good, very good. Incident को Japanese में क्या बोलेंगे? Incident. It depends actually in the context. Okay. No. All right. And Deki goto or something. Just put it in the chat. Wait. Great. Okay. Let's go to Samruddhi. क्या क्या कवर हो गया? इंसिडेंट कवर हो गया, रिजॉल्वर ग्रुप कवर हो गया. पूजा ने एक और वर्ड बोल दिया था, बट उसको मैं काउंट नहीं करूंगा. तो समृद्धि, व्हाट एल्स हैव वी डिस्कस्ड?
Yeah. You can chat, put it in chat if you're not. Dekigoto. Dekigoto. Dekigoto is an incident. Okay. 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 एक मिनट हाँ. Ashfaq, who should I pick next? Yashasri, you've already told me something. Go ahead, Yashasri. Yes, sir. What terminology have you used? Incident, sir. And what is the other? So going forward, start taking notes. So there are a couple of things Sanjit has mentioned. One is asset, service request, correct? Resolve a group, incident, correct? Complaint. So these words, I think you should remember when. So small. If you are not aware about these terminologies, just start taking notes. Going forward, it will help you understand better, right? All right. So now we'll go forward. What is the story so far? The user has raised a ticket that there is something wrong with the asset, and the ticket has been raised or has gone to the resolver group. Now what happens? Me, as one of the resolver groups, I start taking action. I am called the service agent. Okay. Write it down. You know what is coming, because after that, after this, immediately I'm going to ask you to name some terminology. So I'm called the service agent. तो मैं सर्विस एजेंट हूं, तो मैं एक्शन लेता हूं. मैं नीचे जाता हूं, लीश लेके मेरे कुत्ते को ढूंढ के वापस घर लेके आता हूं. ठीक है. ये सर्विस एजेंट मतलब मेरे पास इंसिडेंट या टिकट लॉग हुआ, मैंने उसके ऊपर एक्शन लिया. Whatever action was to be taken was to go down, catch the dog and bring it back. इसको क्या बोलेंगे? कोई टर्मिनोलॉजी? ये जो मैंने किया करके मैंने खत्म कर दिया वो इंसिडेंट, इसको क्या बोलेंगे? कोई टर्मिनोलॉजी? कोई भी? Resolving incident. वेरी गुड. अरे यार नाम बोला करो, बिकॉज आई डोंट नो योर वॉइसेस येट. हु वाज दैट? Ayan, thank you very much. Okay, so ये इंसिडेंट रिजॉल्व हो गया. आई एम अ रिजॉल्वर ग्रुप, तो मेरा पार्ट ऑफ द रिजॉल्वर ग्रुप, तो मेरा काम ही है इंसिडेंट रिजॉल्व करना. तो मैंने इंसिडेंट रिजॉल्व कर दिया. ठीक है. कुछ दिनों के बाद ये इंसिडेंट वापस हो गया, मैंने वापस रिजॉल्व कर दिया. तो मुझे लगा या यूजर को लगा, बेसिकली मुझे लगा कि ये बार बार क्यों हो रहा है, बार बार मुझे करना पड़ता है, बार बार चेल्सी भाग जाती है, बार बार मुझे जाके उसको पकड़ के लेके आना पड़ता है, इंसिडेंट बार बार होता है, रेजोल्यूशन बार बार करता हूं. तो इसको, इस चीज को कि ये बार बार क्यों हो रहा है, इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे? Problem. Very good. Who was that? Please just say in Shubham. this format. Sanjit, problem. Shubham, problem. Shubham, thank you very much. So this is a problem. Okay. So what do we do with a problem? So first of all, this is a problem. So this has to be recorded somewhere कि भैया there is a problem. तो सबकी, मान लो कोई फोरम है या कोई मीटिंग है, डैडी मम्मी बेटे बेटी सब कुछ, तो अभी टीम ने डिसाइड किया भैया प्रॉब्लम है. तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ अ टिकट. वी टॉक्ड अबाउट एन इंसिडेंट टिकट. सिमिलरली यू विल हैव अ प्रॉब्लम टिकट कि भाई ये प्रॉब्लम है. तो यूजुअली क्या होता है कि इंसिडेंट्स को रिस्पॉन्ड करने वाला रिजॉल्वर ग्रुप एक होता है, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने वाला ग्रुप यूजुअली अलग होता है. Any reason why? Can you think of? Again, if you are chatting, do that, or if you are speaking, then say your name. Sorry.
Go ahead. So just wanted to see, I just wanted to give some other example over here so they can relate. Sandeep. It's around basically dish TV once again. So जैसे अभी डिश टीवी का देखो, अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपने नया DTH बॉक्स लेके आए, करेक्ट? तो आपने कॉल किया इंस्टॉलेशन के लिए, करेक्ट? दैट्स बेसिकली सर्विस रिक्वेस्ट. फर्स्ट टाइम आप लेके आ रहे हो बॉक्स, आप इंस्टॉल करने के लिए बोल रहे हो, आपके इधर जो इंस्टॉलेशन के लिए बंदा आ जाएगा वो सर्विस रिक्वेस्ट मैनेज करेगा. डे टू डे लाइफ का ये एग्जांपल बताऊं. दूसरा इश्यू मैं बता रहा, मैंने एग्जांपल आपको बताया कि आपका इधर सर्विस में बहुत सारा डिस्ट्रप्शन है, क्वालिटी इज नॉट गुड, एंड दिस इज इशू बेसिकली. So what you're going to do, raise a complaint, and complaint is nothing but complaint is raised as a basically incident, correct? For example, if quality of service is not good, and this happened once only, एक time हो गया, means एक ही time हो गया, तो इसको incident बोलते हैं, correct? और ये बार बार यही टाइप का quality of service का issue आना start किया, okay? तो क्या होगा? तो typically जो इशू बार बार रिपीट होता है और उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, डे बाय डे कुछ थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो गया तो भी you'll still basically say कि ठीक है हो रहा है कुछ इंप्रूवमेंट, बट देयर इज नो इंप्रूवमेंट, दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन. ऐसे जो इश्यूज रहते हैं, जो ऐसे इंसिडेंट है जो बार बार होते हैं, है ना, उसको अलग से देखा किया जाता है. और दैट व्यू इज बेसिकली इज गोइंग टू बेसिकली प्रॉब्लम मैनेजमेंट टीम, जो प्रॉब्लम को देखता है कि ये बार बार हो रहा है. एक बार हो गया तो इंसिडेंट, बराबर. मैंने सर्विस रिक्वेस्ट बोला, जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेगा डिवाइस, डिश टीवी कॉन्फ़िगर करेगा, वो सर्विस रिक्वेस्ट, उसके लिए सर्विस रिक्वेस्ट. जब प्रॉब्लम आता है आपको, यू आर नॉट एबल टू वॉच योर चैनल्स, यू आर नॉट गेटिंग राइट क्वालिटी, आप क्या करते हो? कंप्लेन करते हो. कंप्लेन इज बेसिकली इंसिडेंट. बार बार अगर ये प्रॉब्लम होता है तो ये क्या है? ये होता है आपका प्रॉब्लम टिकट, क्योंकि रिपीट हो रहा है. देयर इज नो सॉल्यूशन, मींस उसको कोई एंड ही नहीं है. बार बार उसको आइदर दे हैव टू कम एंड फिक्स बाय रिप्लेसिंग द डिश, रिप्लेसिंग योर DTH बॉक्स, रिप्लेसिंग योर, है ना, और बेसिकली हैव सम डिफरेंट डिवाइस व्हिच विल, कुछ दूसरा मैकेनिज्म रहेगा, या वो सीधा बोल के जाएंगे कि भाई ये होगा ही नहीं, करेक्ट? वो एक है कि आपका एरिया का नेटवर्क ही नहीं है, दैट आल्सो इज पॉसिबल, करेक्ट? बट आप जब भी कॉल करते हो, मैं जस्ट वांटेड टू टेक एन अपॉर्चुनिटी व्हाइल वी आर डिस्कसिंग दिस, ओके? सबसे पहले आपको जब कॉल करते, कंप्लेंट रजिस्टर करते थे, वो सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछता है आपको? आपका पहले मोबाइल नंबर पूछेगा, करेक्ट? दूसरा बोलेगा आपके इधर डिवाइस कौन सा है, करेक्ट? उसमें लाइट कौन सा आता है, तो डिवाइस का आप बोलोगे कि नहीं मेरे पास छोटा है, रिकॉर्डिंग वाला है, करेक्ट? या मेरे पास अलग अलग टाइप के डिवाइसेस रहते हैं. डिश टीवी का ये एग्जांपल, बिकॉज यू विल बी एबल टू रिलेट, बिकॉज डे टू डे लाइफ में रोज तुम डिश टीवी देखते होगे. तो जनरली क्या है, वो डिवाइस का टाइप पूछता है, कौन सा टाइप का, रिकॉर्डिंग वाला है, DTH विद ब्रॉडबैंड है, नॉर्मल DTH है, करेक्ट? तो वो पूछना स्टार्ट करता है. फिर मुझे वो आपको पूछता है कि आपका सीरियल नंबर बताओ, या जो भी तुम्हारा वो कार्ड का ID रहता है, करेक्ट? मोबाइल नंबर पूछेगा, ये सब इंफॉर्मेशन पूछता है, करेक्ट? ये इंफॉर्मेशन जो पूछता है वो इंफॉर्मेशन अपने साइड से वेरीफाई करता है, करेक्ट? ये इंफॉर्मेशन जो है, आपका इंफॉर्मेशन, आपका ही बॉक्स है, वो वेरीफाई करने के लिए आपको पूछता है कि आपको बर्थ डेट बताओ, या आपका पैन कार्ड, वॉट एवर यू हैव सबमिटेड एज एड्रेस फॉर एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ. ये जो सब पूछ रहा है इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो स्टोर्ड समवेयर, और ये इंफॉर्मेशन जो वैलिडेशन के लिए यूज कर रहा है, करेक्ट? वो इंफॉर्मेशन इज बेसिकली पार्ट ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन डेटा. मींस क्या है कि आपका डिवाइस कौन सा है, उस डिवाइस के अगेंस्ट क्या क्या सर्विसेज कॉन्फ़िगर्ड है. सभी के सभी चैनल्स आपको दिखते नहीं. आप जस्ट इमेजिन करके देख लो, आप पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 ले रहे हो टाटा स्काई से. एक पैकेज एक ही यूजर को दिखता है, दूसरा पैकेज, बिकॉज सेम बाजू बाजू में अगर डिश टीवी के बॉक्सेस भी रहेंगे, एक ही घर में एक ही डिश एंटीना पे आपके 10 डिवाइस भी रहेंगे, हर एक डिवाइस का अलग अलग चैनल सब्सक्रिप्शन हो सकता है, करेक्ट? हो सकता है कि नहीं? जस्ट रेज योर हैंड, नॉट नेसेसरली यू शुड स्पीक, ओके? हो सकता है कि नहीं? मींस आपके घर में एक डिश एंटीना
एंड देयर आर है ना मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस, मींस एक डिश एंटीना पे आपके इधर एक डीटीएच बॉक्स पे समझ लो खाली स्टार चल रहा है, दूसरे पे जी, तीसरे पे सोनी. दैट्स पॉसिबल, करेक्ट, बिकॉज ईच डिवाइस इज हैविंग बेसिकली है ना सर्विसेज टैग टू इट, करेक्ट, and those services basically are registered somewhere. तो वो रजिस्टर किए हुए सर्विसेज अपने कॉन्फ़िगरेशन डेटा में रहता है, करेक्ट, और एसेट में रहता है. संजीत ने जैसे बोला कि ये एसेट और दीज आर द सर्विसेज अलाइन विद दिस, करेक्ट. सॉरी संजीत. No, फैंटास्टिक. तो आपने एक और वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, और एक इसके ऊपर मैं बाद में आना वाला था. सॉरी, जस्ट लेट मी से द वर्ड व्हिच इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस, CMDB. कितने एसेट हैं, उसके क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसके क्या क्वालिटी है. अशफाक का एग्जांपल अगर लें तो डिश टीवी, आई एम द सर्विस प्रोवाइडर ग्रुप, आई एम द सर्विस मैनेजर. तो मैं कितने टाइप के एसेट्स कंट्रोल कर रहा हूँ. मेरे पास बड़ा बॉक्स है, छोटा बॉक्स है, रिकॉर्डिंग वाला बॉक्स है, काला है, नीला है, जो भी है, राइट. सो आई नीड टू हैव दैट इन माय डेटाबेस कि भैया कौन से डेटाबेसेस हैं, वो कौन कौन यूजर यूज कर रहे हैं, किसके पास क्या है. दैट इज अनदर टर्मिनोलॉजी आई वुड लाइक यू टू नोट. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस. Sorry, Ashfaq, you were saying something. Yeah, next. So generally, whenever you are calling them, so they are going to ask this question. पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं, डाइट क्या है, सब कुछ. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या करता है पता है आपको? वो बोलता है आपने एक टाइम आपका डीटीएच बॉक्स स्विच ऑफ किया है क्या? आप जरा स्विच ऑफ करके देख लो सर, है ना. आप क्या करोगे, जाओगे उस बटन बंद करोगे, फिर चालू करेगा, बोलेगा क्या क्या लाइट दिख रहा है मुझे बताओ. आपसे इधर हरा दिख रहा है, नीला दिख रहा है, पीला दिख रहा है, लाल दिख रहा है, क्या लाइट दिख रहा है आपको, करेक्ट. फिर उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, हाँ ठीक है, ग्रीन तो सब ग्रीन दिख रहा है. आप एक बार काम कर लो, आपका जो केबल है डिश टीवी से लेके और डीटीएच बॉक्स से लेके आपके टीवी तक, वो केबल सही लगाएगा नहीं, एक बार देखो, करेक्ट. सो बिफोर सेंडिंग एनी बेसिकली सर्विस पर्सन टू योर होम, ये पहले 10 स्टेप्स आपको करने के लिए बोलेगा. इवन फॉर डीटीएच, फॉर ब्रॉडबैंड फॉर दैट मैटर, ब्रॉडबैंड भी आपके घर में बोलेगा ये केबल निकालो, बंद करो, रिस्टार्ट करो, थोड़ी देर 10 मिनट रुको, फिर आप डिवाइस चालू करो. सिमिलरली इट हैपेंस विथ योर अदर डिवाइसेस. सो ये जो इंफॉर्मेशन है वो बोल रहा है कि ये करो, वो करो, एक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ये क्या है? सो ये है आपका बेसिकली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उसको बोलते हैं. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये करके देखो. और ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो रहता है तुम्हारा नॉलेज मैनेजमेंट डेटाबेस में. तो ये पार्ट है कि वो क्या करेगा, जो भी अभी तुम जो भी इश्यू बोलोगे ना, वो डॉक्यूमेंट खोलेगा उसका और देखेगा इसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या है. बिफोर सेंडिंग एनी पर्सन टू योर होम, करेक्ट, ये एफर्ट लेगा वो तुम्हारा सर्विस डेस्क एजेंट, जो ये जिससे तुम बात करते हो वो सर्विस डेस्क एजेंट है. ही इज नॉट बेसिकली, है ना. और इवन फॉर दैट मैटर कुछ जगह पे सर्विस डेस्क एजेंट नहीं होगा, रोबोट रहेगा तुम्हारे साथ. आप क्या करोगे, हाई करोगे रोबोट, वो पूछेगा तुम्हारा सब्सक्रिप्शन आईडी बताओ, मोबाइल नंबर बताओ. जब आप वो नंबर या सब्सक्रिप्शन आईडी दोगे, वो पूछेगा बताओ मुझे आपको क्या हेल्प चाहिए. तो और वो भी रोबोट, इमेजिन दैट. एंड ये जो रोबोट जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, और उसके बाद में जो भी आपको डॉक्यूमेंट देगा, फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे ठीक है मेरे को नेटवर्क नहीं आ रहा है, या है ना टीवी पे कुछ नहीं दिख रहा है, सेटअप बॉक्स चालू है, तो वो क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट भेज देगा आपको, और अदरवाइज 4 स्टेप भेज देगा, इस 4 स्टेप करके देख लो, करेक्ट. और दो स्टेप्स आर रिकॉर्डेड इन योर नॉलेज मैनेजमेंट डेटाबेस, करेक्ट. So, जैसे CMDB में क्या है, आपका एसेट, आपका DTH का डिवाइस का टाइप क्या है ना, आपकी सर्विसेज क्या है, वो CMDB में आएगी. वही आपको जो स्टेप्स बताया जाएगा 1, 2, 3, 4, दो स्टेप्स आर बेसिकली रिकॉर्डेड इन नॉलेज मैनेजमेंट डेटाबेस. हमने क्या क्या टर्मिनोलॉजी सीखी है, सर्विस रिक्वेस्ट, इंसिडेंट, प्रॉब्लम, नॉलेज मैनेजमेंट, एंड और क्या सीखा हमने, CMDB, correct? Configuration management. Perfect. This is how you should understand. SOP, KMB. CMDB. अभी आई एम जस्ट मूविंग टू वन मोर टर्मिनोलॉजी संजीत, है ना. अभी एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, आपने अभी घर बदल दिया, करेक्ट. You're
I'll come to that. I'll come to that. वहां तक अभी पहुंचे नहीं है. I was just about to start on the second step. अभी तक I'll go back to my dog वाला example, right? Dog वाले example में क्या क्या हो गया? एसेट के साथ कुछ गड़बड़ हो गया, इंसिडेंट हो गया, यूजर ने सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर दिया, रिजॉल्वर ग्रुप में से सर्विस एजेंट ने जाके उसको रिजॉल्व कर दिया. ठीक है, और ये बार बार हो रहा है, इसलिए एक प्रॉब्लम टिकट रेज हुआ. मैंने एक क्वेश्चन पूछा था बिफोर आई हैंडेड ओवर टू अशफाक कि प्रॉब्लम टिकट जो रिजॉल्व करते हैं यूजुअली वो ग्रुप अलग होता है. ऐसा क्यों होता होगा? Anybody in the chat or anybody can tell me a voice. It is not always, but usually प्रॉब्लम टिकट को हैंडल करने वाला टीम अलग होता है. ऐसा क्यों होता होगा? Anybody? Looking at the chat. Sir, I guess because they are dealing with a more grassroots problem. Grassroots problem. Who is dealing with the more grassroots problem? The people who are dealing with the problem ticket. Dealing with the problem ticket. I think आयान उल्टा है. जो इंसिडेंट रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं, दे आर मोर एट द ग्रास रूट. अशफाक के एग्जांपल में दे आर द पीपल हु आर गोइंग आउट एंड यू नो पीपल घर में जाके ये चेंज कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं, वगैरह वगैरह. तो सर बिकॉज उस टीवी के कॉन्टेक्स्ट में वो लोग को पता होगा कौन कौन से प्रॉब्लम्स बार बार आते हैं, सो दे आर ट्रेन्ड टू सॉल्व दैट. बट अगर 100 लोग के घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो लोग के सर्विस में कुछ प्रॉब्लम होगा. तो यू आर राइट. तो जो सर्विस एजेंट हैं जो मेनली इंसिडेंट रिजॉल्व कर रहे हैं, दे आर यूजुअली फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो अशफाक ने बताया, एसओपी, राइट? कुत्ता भाग गया तो क्या करने का इन माय केस, राइट? वो भाग गई, शी इज रन अवे टू चेज कैट्स. द अदर थिंग दैट शी लाइक्स मोर देन चेजिंग कैट्स इज राइडिंग इन माय कार. तो मेरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? चेल्सी भाग गई, कार में बैठो, कार लेके जाओ, राइट? वो कार देख के ही आ जाएगी, दरवाजा खोलो, वो बैठ जाएगी. ये मेरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, करेक्ट? इफ आई गो बैक टू द डिश एग्जांपल, ये हो गया. तो पहली बात तो आपको ही बोलते हैं करने के लिए, केबल ये करो, पावर ऑफ करो, ये करो, वो करो, लाइट बताओ. ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के 5 पहले स्टेप है जो एज फार एज पॉसिबल वो यूजर से ही करवा लेते हैं. अगर तो भी नहीं हुआ तो एक सर्विस एजेंट आपके घर में आ जाता है, एंड द सर्विस एजेंट यूजुअली डज some other step 5 to 20 of the standard operating procedure. But if the service agent, if the same incident is happening over and over again, Pune में भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, तो then it's a problem. So problem ticket raise हुआ. Problem ticket resolve करने के लिए usually it needs a different level and a different kind of skill. Okay. Is that Yes, making sir. sense? Yes, sir. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक अलग स्किल, अलग लेवल का स्किल होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स द प्रॉब्लम कुड बी समथिंग एल्स, राइट? मेरे पास डिश टीवी का बॉक्स बार बार रीबूट हो रहा है, राइट? जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम वो बॉक्स में है. द प्रॉब्लम कुड बी विद माय पावर सप्लाई, करेक्ट? द प्रॉब्लम कुड बी मेरा वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, मेरा कुछ भी हो रहा है, right? So this is not an SOP based action, and when it is not an SOP based action, it requires higher expertise, higher knowledge, higher skill, higher experience. Did you get it? Yes, I got it. So Shahrukh is saying specially trained team assigned to problem solving. Yes, Shahrukh, that's exactly sorry, I didn't look at the chat. That is exactly what I'm saying. So जो रिजॉल्वर ग्रुप होता है उसके अंदर भी it is not 100 people all massed together. These 100 people are also classified according to various things. One is they are classified according to their area of expertise. कोई नेटवर्क में एक्सपर्ट है, कोई किसी और में एक्सपर्ट है, कोई पावर सप्लाई में एक्सपर्ट है, कोई ट्रांसमिशन में एक्सपर्ट है, and all of that. So that is the vertical
classification. There is a horizontal classification also. So that is known as L1, typically used as L1, L2, L3, L4. So L1 जो है, that is typically handling incidents. बार बार जो हो रहा है, L1 is SOP based. SOP है मेरे पास, आई एम एन L1 एजेंट, मेरे पास एक SOP है, मैं जाता हूं, मैं देखता हूं ऐसा हो गया, ये बटन दबाओ, वैसा हो गया, वो बटन दबाओ, उसके बाद लाइट जला, नहीं जला, फिर ये करो, फिर वो करो, वो पूरा SOP है, राइट? एंड बिकॉज इट इज SOP based, today the trend is that it should be automated as much as possible. It should be automated by software as much as possible, and now so it should be automated by artificial intelligence as much as possible. And this is very, very important for you guys to know, because जो लोग इंडस्ट्री में हैं अभी, जो लोग इनिशियली एंट्री लेवल में L1 एजेंट्स करके ज्वाइन होते हैं, उनका जॉब का क्या होने वाला है थोड़े दिनों में. Some of the clients that I'm working with, live, I'm telling you, like last week, we've given a proposal to one of my clients that तुम्हारा L1 टिकट से ना हम लोग 80% ऑटोमेट कर देंगे. 80% कैसे ऑटोमेट कर देंगे तुम्हारा L1 टिकट? बिकॉज SOP बेस्ड ही है, राइट? या तो सॉफ्टवेयर से, या हमारे पास अब AI टूल्स आ गए हैं, तो उससे हम ऑटोमेट कर देंगे. तो जो 80% L1 एजेंट्स है, उनका क्या होगा? So it is important for you to remember this, that L1 agents अब खतरे में है because of automation and all. But you guys are in a different bucket. You are not going to be a L1 agent, okay? Or you are sitting on the other side. You will, when you learn ServiceNow and when you get certified and all of that, so you will be managing the system which manages all of this process that we are going to talk today, okay? And you will be the people who will be doing the automation. Maybe not as your first job or whatever. Eventually, आप ServiceNow में जब काम करोगे, तो जिस क्लाइंट ने आपको हायर किया है कि हाँ भैया शाहरुख आके मेरा ServiceNow का इंस्टॉलेशन तो संभाल, the client's expectation would be कि यार ये SOP based है, वो धीरे धीरे ऑटोमेट करते जा, मेरी कॉस्ट कम करते जा, मेरी एफिशिएंसी बढ़ाते जा, and all of that. But I am digressing, right? My question here was कि जो प्रॉब्लम टिकट रेज होता है, उसका टीम जो होती है, रिजॉल्वर ग्रुप जो होता है, जिस टीम को वो असाइन होता है, वो यूजुअली अलग टीम होती है. L1, L2, L3 इस तरह का क्लासिफिकेशन होता है. दैट वी विल कम टू टुमारो व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग एट एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है इस प्रोसेस का, ये सब्जेक्ट का. बट ये अलग टीम होती है बिकॉज इसके स्किल्स अलग होते हैं. एक और क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम टिकट कौन रेज करता है? Can the user raise a problem ticket? Yeah, but that is not what usually happens. Usually problem ticket कौन raise करता है? बोलो, कोई चैट में बोलो या वॉइस में बोलो. आपने प्रॉब्लम को तो समझ लिया है, करेक्ट? शाहरुख कहता है प्रॉब्लम टिकट यूजर रेज करता है, कर सकता है, बट दैट इज अनयूजुअल. दैट्स व्हाट मेरा क्वेश्चन ये. यूजर नहीं करता है, क्यों नहीं करता है और कौन करता है? प्रॉब्लम टिकट तो रेज होता है, तो कौन प्रॉब्लम टिकट रेज करता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और शाहरुख, मैं आपको कह रहा हूं कि आपने कहा यूजर प्रॉब्लम टिकट रेज करता है, कर सकता है, पर यूजुअली नहीं करता है, तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? व्हाई डू यू थिंक आई एम सेइंग? इफ यू अंडरस्टैंड दिस कि यूजर क्यों नहीं करता है प्रॉब्लम टिकट रेज और कोई और क्यों करता है, तो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. एनीबॉडी एल्स? डोंट नो. वेरी गुड, दैट इज परफेक्ट. That is what you are here for, Shahrukh. Yeah. Let me take an opportunity, Sanjay. Okay. So, no, but let me give 5 more seconds to say anyone कि भाई क्यों यूजर प्रॉब्लम टिकट रेज नहीं करता है. नॉर्मल टीम प्रॉब्लम टिकट सॉल्व नहीं करती है, उसका आंसर तो देख लिया, बिकॉज स्पेशल स्किल्स आर नीडेड एंड ऑल दैट. बट
who raises problem tickets or who is expected to raise problem tickets? इसका आंसर कोई दे दो। और Agent working on incident. why? Good question. कौन था वो? Shubham. शुभम। why? Repetitively same incidents are coming. तो क्या फर्क पड़ता है? why? Bad user experience. तो क्या फर्क पड़ता है? वेरी गुड, आई लाइक द डायरेक्शन इन दिस द कन्वर्सेशन। व्हाई? बैड यूजर, तो मैं एजेंट हूं, ठीक है, बार बार इंसिडेंट आ रहा है, मैनू की यार, यू से बैड यूजर एक्सपीरियंस, वेरी गुड, तो भी मैनू की। Why should I resolve this multiple times like that? बट मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो पगार मिल रही है यार महीने की, राइट? मैं आके ये बटन दबाऊं या वो बटन दबाऊं, पैसा तो मुझे उतना ही मिलने वाला है। ये बहुत Like क्रिटिकल है कि प्रॉब्लम टिकट रेज होना चाहिए। ओके, और मैं आई एम ट्राइंग टू आस्क यू, क्यों कोई करेगा प्रॉब्लम टिकट रेज? यूजर तो नहीं करेगा। ओके, यूजर को क्या पड़ी है? any and okay, I'll let Ashfaq come in, but I'll end this No, particular sorry. stream It's here. going well. I think that is what I wanted to No, wait, explain. wait. Yeah, so what Raising Shubham- of problem tickets. See, आप लोग जो हो ना, you people who are learning service now are going to be sitting on the other side of the table. You are the people eventually who will manage this ITSM or service management process. तो ये आपकी जो रिजॉल्वर ग्रुप टीम है, उसके अंदर ये बिहेवियर प्रोपेगेट होना है। सर्विस नाउ की टीम नहीं, सर्विस नाउ की टीम में ये नहीं है। ओके, बट योर नेटवर्क टीम, योर whatever engine management team, they will be using ServiceNow as their ticketing system. तो उसके अंदर जो रिजॉल्वर ग्रुप एजेंट हैं, तो उनसे आपको ये करवाना है, उनको मोटिवेट करना है कि भाई खाली इंसिडेंट रिजॉल्व करते मत बैठो, प्रॉब्लम टिकट रेज करो। क्यों? क्योंकि उससे यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उससे हमारी कंपनी का रेपुटेशन बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपको करना नहीं है, ये आपको करवाना है। दिस इज द राइट बिहेवियर टू ड्राइव within the user. So ServiceNow is not only just making the system and all of that. It is actually making sure that the users also do the right behavior. Back to you, Ashfaq. Yeah. So you rightly pointed out. And the second thing, problem ticket raise, जैसे user in few of the cases they can, correct? But and whether company will buy that or not, that's different story, correct? But company will certainly buy your L1, L2 or L3 teams inputs, because जब वो बोलेगा नहीं सर मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नेक्स्ट लेवल को एस्केलेट करता हूँ, करेक्ट? आप देख लो कभी भी, और जब एस्केलेशन होता है आफ्टर सर्टेन टाइम, वो बोलता है कि L1 से काम नहीं हुआ, L2 से भी नहीं हुआ, करेक्ट? जैसे संजीत बता रहे थे कि L1 रहता है एक बेसिक जो SOP देख के कर रहा है, दूसरा जो एक्सपर्ट रहता है उस एरिया में का, वो भी बोला यार मेरे से भी नहीं हो रहा है ये प्रॉब्लम, मेरे से भी इशू सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये जब इशू सॉल्व नहीं हो रहा है L1 से, L2 से, L3 से, देन उसका अप्रोच चेंज हो जाता है। बोलते यार ये अभी इट्स नॉट एन इंसिडेंट एनीमोर, दिस इज अ प्रॉब्लम, करेक्ट? तो जो इशू तुम्हारे जो बॉटम से टॉप तक जाके भी आप जूनियर मेंबर्स लेके सीनियर मेंबर ने अटेम्प्ट किया, फिर भी वो बार बार रिपीट हो रहा है, रिजॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशंस में उसको कैटेगराइज करते हैं प्रॉब्लम करके, और देन there is a different process which is followed, and that will have multiple basically ना interactions. तो वो इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम से भी बात करता है, वो चेंज मैनेजमेंट टीम से बात, प्रॉब्लम टिकट will be managed different, उसमें RCA वगैरह होगा। wait. So I'm coming to that. So अभी प्रॉब्लम टिकट रेज हो गया, ओके। यूजुअली यूजर प्रॉब्लम टिकट नहीं रेज करता है, कोई तुम्हारे टीम मेंबर ही प्रॉब्लम टिकट रेज करता है कि बॉस ये बार बार आ रहा है, इसको देखो, राइट? तो सबसे पहला चीज आप क्या करोगे उसके अंदर? प्रॉब्लम टिकट आ गया आपके पास, तो अशफाक जस्ट हिंटेड एट दैट, सबसे पहले आप क्या करोगे? आप रूट कॉज एनालिसिस करोगे, ये क्यों हो रहा है। ओके, आई ऑल्सो हिंटेड एट दैट एग्जाम्पल कि मेरा डिश टीवी का बॉक्स बार बार रिबूट हो रहा है, उसका रूट कॉज मे नॉट बी इन द डिश टीवी बॉक्स एट ऑल, इट कुड बी इन माय पावर सप्लाई, इट कुड बी इन माय वोल्टेज थिंग एंड ऑल दैट, ठीक है? सो उसका एक रूट कॉज एनालिसिस होता है। अशफाक was saying it's a completely different process.
पहले बहुत सारा डेटा गैदरिंग करना पड़ेगा, एटसेट्रा करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, रूट कॉज एनालिसिस होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. So that is also a term that you will come across again and again, which is root cause analysis. And after root cause analysis, what you will do, I'll cover in just a minute. Let me get Ashfaq's comments on this. प्रॉब्लम टिकट के बारे में और क्या बोलना है? नहीं, प्रॉब्लम टिकट के बारे में सो बेसिकली इट इज अ बेसिकली टिपिकली आप सर्विस रिक्वेस्ट, तो वो क्या करेगा, एक घंटा भर आदमी आके इंस्टॉल करके डिवाइस निकल जाएगा. इंसिडेंट में इट में हैपन कि वो 2 घंटे में बोलेगा, वो बोलेगा कल करता हूँ, आज नहीं हुआ है, परसों करता हूँ. वो दे विल कीप वर्किंग ऑन दिस. बट वो जो ड्यूरेशन रहता है जनरली, उसका लाइफ जो रहता है कोई इंसिडेंट का, तो हर एक चीज का SLAs होता है ना. एग्जाम्पल, तो एक SLA मीन्स सर्विस लेवल एग्रीमेंट. तो आपको बोला जाता है कि आपने ये सर्विस डिस्ट्रप्शन है तो आपको 4 घंटे में इसका सॉल्यूशन मिलेगा, या 8 घंटे में मिलेगा, या 24 घंटे में मिलेगा. करेक्ट. आपको एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट रहता है. जब भी कोई कंपनी से सर्विसेज सब्सक्राइब करते हो तो उसके साथ तुम्हारे को बोला जाता है कि मैं अब 24 घंटे में आपको ये हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, जो भी वॉट एवर इट मे बी. करेक्ट. इट्स अ सर्विस वारंटी. आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व, आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाए. एग्जैक्टली. तो ऐसे ये जो SLA जो है वो टिपिकली सर्विस रिक्वेस्ट और इंसिडेंट टाइप कैटेगरी टाइप के इश्यूज को रहेगा, मींस बराबर. बट प्रॉब्लम टिकट का ऐसे कोई डिफाइंड SLA नहीं होता और डिफाइंड सर्विस लेवल एग्रीमेंट नहीं होता, बिकॉज प्रॉब्लम टिकट्स आर टेकन सेपरेटली. और कभी कभी देर आर कंपनीज हु बेसिकली काइंड ऑफ गेट एन एग्रीमेंट दैट ये प्रॉब्लम है, बार बार आ रहा है, तो विद इन 40 days 45 days. तो लाइफ साइकिल जस्ट वांटेड टू, मैं ये बताना चाहता हूँ कि टिपिकली इंसिडेंट और सर्विस रिक्वेस्ट का जो लाइफ रहता है कोई भी टिकट का, मैक्सिमम 4 दिन का रह सकता है अगर उसका कैटेगरी रहता है. टिकट का भी कैटेगरी रहता है, उसको बोलते हैं सिंपल, मीडियम, कॉम्प्लेक्स. और बेसिकली सीवियरिटी 1, सीवियरिटी 2, सीवियरिटी 3, सीवियरिटी 4, सीवियरिटी 5. राइट. एग्जांपल के तौर पे सीवियरिटी 1 इज हाईएस्ट वन और P1 बोलते हैं उसको इन अदर वर्ड. करेक्ट. P1 मीन्स 2 घंटे में उसको सॉल्यूशन देना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ मेजर सर्विस डिस्ट्रप्शन. जनरली इंसिडेंट्स व्हिच आर इंपैक्टिंग लार्जर एरिया, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि अपना पूरा सिटी का लाइट गया है. करेक्ट. तो ये क्या हो गया, इट्स अ मेजर इम्पैक्ट, क्रिटिकल सिचुएशन है, पूरा सिटी में लाइट नहीं है. या दूसरा एग्जांपल मैंने बताया था कि तुम्हारा बिल्डिंग में लाइट नहीं है. करेक्ट. तो इम्पैक्ट इज देयर बट लिमिटेड यूजर को है. करेक्ट. तीसरा एग्जांपल मैंने बताया था कि खाली अकेले के घर में लाइट गया, तो बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट है, बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट है. तो बेस्ड ऑन, है ना, ग्रुप पीपल इन्वॉल्व और टेरिटरी इन्वॉल्व. करेक्ट. वो इंसिडेंट का भी कैटेगराइजेशन होता है. इंसिडेंट जो है उसका कैटेगराइजेशन होता है, वो क्रिटिकल है, उसमें लो, एवरेज, हाई काइंड ऑफ कैटेगरी होता है. लो मीन्स कि ठीक है यार, 2 दिन में करोगे तो भी चलेगा. करेक्ट. नॉट नेसेसरली इमीडिएटली उसको देखना है, 2 दिन तक का SLA है, क्या सर्विस लाइन एग्रीमेंट है तुम्हारा. दूसरा ऐसे हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि आपका घर का लाइट गया तो वो MSCB वाला बोलेगा सर आज नहीं, उदय तो, या बोलेगा कि नहीं 4-5 घंटे के बाद आ जाओ. करेक्ट. या वो 6 घंटे के बाद भी आ जाएगा. इट ऑल डिपेंड्स उसके पास टाइम कितना है या उसके पास स्टाफ कितना है. करेक्ट. और उसका सर्विस लेवल एग्रीमेंट तुम्हारे साथ क्या है. दूसरा एग्जांपल है, आपका बिल्डिंग का लाइट गया तो हमारे बिल्डिंग के 50 लोग पीछे पड़ेंगे. करेक्ट. और 50 लोग रिपोर्ट करेंगे इशू, भाई हमारा लाइट गया. तो ऐसे सिचुएशन में दे हैव टू टेक एन एक्शन. करेक्ट. तो हर एक इसका एक ड्यूरेशन रहता है, हर एक कैटेगरी के अगेंस्ट एक SLA रहता है. करेक्ट. उसका KPI बोलते हैं, है ना. जनरली जो क्रिटिकल इंसिडेंट रहता है वो 2 घंटे में रिजॉल्व करना पड़ता है या 4 घंटे में.
इंडस्ट्री बेस्ड प्रैक्टिस के हिसाब से, जो सेमी क्रिटिकल या बोल सकते हैं एवरेज, क्रिटिकल इज हाई, वो सीवियरिटी 1 और P1 बोलते हैं, S1 और P1 फॉर एग्जांपल, करेक्ट। सीवियरिटी 2 और P2 जनरली तुम्हारा एक दिन का टाइम रहेगा, 1 वर्किंग डे, करेक्ट। सीवियरिटी 3, ओके, वो माइट बी 4 वर्किंग डेज रहता है। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, इंसिडेंट का जो लाइफ रहता है मैक्स टू मैक्स 4 दिन का हो सकता है ना, बट प्रॉब्लम टिकट का लाइफ जो है वो 2 महीने भी रह सकता है, साल भर भी रह सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है, उसमें कितना काम करना पड़ेगा, और वो RCA से समझता है। जैसे रूट कॉज एनालिसिस, जैसे संजीत बता रहे थे, वो जब आप डेटा एनालाइज करना स्टार्ट करोगे तब पता चलता है कि इसमें काम कितना करना पड़ेगा, वो अलग सब प्रोजेक्ट बनता है उसका। You might have a simple approach, you might have to create a separate project to resolve those problems, correct? Sanjit, over to you. Yes, thanks. तो अभी हम लोग पहुंचे, प्रॉब्लम टिकट रेज हो गया, किसने किया, अलग टीम को गया, अलग टीम ने रूट कॉज एनालिसिस किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड दे केम अप विद अ सॉल्यूशन कि इसका रूट कॉज ये है और इसका सॉल्यूशन ये है। तो खाली अगर हमने सॉल्यूशन डिफाइन कर दिया कि ये जो है बार बार आपका रिबूट हो रहा है डिश टीवी का बॉक्स, आपका एक्चुअल रूट कॉज है आपके घर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत होता है, तो यहीं पे छोड़ देंगे या इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आपको कुछ वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट? Before switching to, so just to understand problem tickets in different way as well. एक तो आपका इंडिविजुअल डिवाइस पे यूज हो रहा है। अभी समझ लो, आपने सुना रहेगा कि मारुति ने 1 लाख गाड़ियां वापस मंगा ली, सुना है कि नहीं कभी? Yes. है ना? तो उस केस में क्या रहता है सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम टिकट ही है, बट ये प्रॉब्लम खुद कंपनी ने समझा है अपने टेस्टिंग टीम के साथ, कि वो टेस्टिंग करते समय वो डिटेक्ट नहीं हुआ था जब वो प्रोडक्शन में जा रहा था। मींस जब आप बेचने से पहले, वो बेचने के बाद लोगों ने जब रिपोर्ट करना स्टार्ट किया कि ये गाड़ी हीट हो रही है, या गियर स्विचिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो बहुत सारे टाइम है ना, वो ब्रेक लाइनर बदलने के लिए पूरा 10-10 लाख 15-15 लाख गाड़ी एक साथ बुलाते हैं वर्ल्ड वाइड। या इंडिया में समझ लो कुछ एरिया में वो इक्विपमेंट और वो स्पेयर पार्ट के साथ जो गाड़ी भेजा वो वापस मंगाते हैं। आप देख लो, आप अभी भी न्यूज जाके देख सकते हो कि कौन से कंपनी ने ना गाड़ी वापस बुला ली, दे रिप्लेस द पार्ट, करेक्ट, विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री में होता है वो सब काम, करेक्ट। वो भी एक प्रॉब्लम टिकट का ही पार्ट रहता है। मीन्स वो उनको प्रॉब्लम जो है टेस्टिंग टीम बता देती है बाद में जाके, पहले तो टेस्टिंग टीम बताती है अगर कुछ इश्यूज है, नहीं है तो यूजर टेस्टिंग का एक अप्रोच होता है कि जब मल्टीपल यूजर रिपोर्ट करते हैं इस चीज को, फिर वो टेस्टिंग टीम के पास आता है वापस कंपनी में कि सच में ये इतने लोग इशू रेज कर रहे हैं, सच में इशू है क्या। तो सो दैट्स अनदर एग्जांपल, वन एग्जांपल कि सच में इशू क्या है। एग्जैक्टली, हाँ, ओके, सो ठीक है, आपने रूट कॉज एनालिसिस कर लिया वगैरह वगैरह, तो उसके बाद उसके बारे में वो जो सोल्यूशन आपने सोचा है कि इसका सोल्यूशन ये है कि वोल्टेज का इशू है, तो चलो हमारे सारे डिश टीवी के बॉक्सेस में हम लोग एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा देंगे, या हमारे सारे यूजर्स को हम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर भेज देंगे, राइट। सो दैट कुड बी अ पार्ट ऑफ द व्हाटएवर वे द सॉल्यूशन इज डिजाइन। वो वोल्टेज स्टेबलाइजर का पैसा हम यूजर से लेंगे या हम देंगे, फ्री में रिकॉल करेंगे, जो भी है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट देयर इज सम सॉल्यूशन व्हिच हैज बीन डिसाइडेड कि इसका यार ये प्रॉब्लम, ये इंसिडेंट बार बार आता है, मतलब ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसको है? कंपनी को प्रॉब्लम, राइट। हमको बार बार सर्विस एजेंट भेजना पड़ता है, हमारा सर्विस यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको परमानेंटली सॉल्व करने के लिए भैया ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन किसी ने लिख दिया पेपर पे, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो व्हिच कम्स टू द थर्ड फेज ऑफ ITSM। जस्ट टू रिकैप, अभी तक हमने 2 चीज देखी, इंसिडेंट एंड प्रॉब्लम। इंसिडेंट और प्रॉब्लम में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आ गई है, आई होप यू आर टेकिंग नोट्स। I will repeat them, but not just now because I want you to take notes. Incident हो गया, प्रॉब्लम हो गया,
फिर थर्ड फेज आता है. Any guesses what is the third phase called? Incident, problem and X. Change. Change. Very good, Shubham. Thank you very much. तुमने तो पूरा ITSM कर ही लिया है. Anyway, so incident, problem and change. Change को बहुत carefully handle करना पड़ता है for multiple reasons. Number one, change में almost your entire user base is affected. Correct? Change में all your asset base is affected. Change में service disruption भी हो सकता है. Change में cost भी बहुत आ सकती है. So change is a major, बहुत carefully सोच के उसको करना पड़ता है. उसको implement कैसे करें? Implement करते समय ये सोचना पड़ता है big bang roll out करें या धीरे धीरे city by city करते जाए. Cost कैसे minimize करें? Risk क्या है? Service disruption तो नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार चेंज करने के चक्कर में जो चलता चलाता था उसको भी बंद कर दिया आपने. Are you getting me? So that is the change management process. So उसका भी एक अलग टिकट बनता है. Everything is a ticket. इंसिडेंट टिकट रेज हुआ, बार बार इंसिडेंट टिकट रेज हो रहे हैं, तो सिस्टम में या टीम में कोई उसको प्रॉब्लम टिकट बोल के रेज कर देता है. प्रॉब्लम टिकट रेज हुआ तो वो किसी और टीम के पास जाता है. वो टीम के पास एक अलग एक्सपर्टीज, अलग स्किल, अलग प्रोसेस एक्सेट्रा होता है. वो लोग रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, वो लोग सोल्यूशन बनाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके बाद एक चेंज रिक्वेस्ट या चेंज टिकट रेज होता है. वो एक अलग टीम के पास जाता है जो आर एक्सपर्ट्स इन मेकिंग श्योर that the change can be implemented at lowest cost, lowest risk, lowest service disruption, etc. अशफाक ने जो एग्जांपल दिया, ओके, वो मारुति में किसी ने बैठ के सोल्यूशन निकाला होगा कि सब गाड़ी का ब्रेक लाइनर बदल दो. अरे भाई, सब गाड़ी का ब्रेक लाइनर बदल दो, खाने हलवा नहीं है यार, राइट? So somebody has to plan that very very well, okay? And if they ask everybody in Pune, send your cars back, is it not a service disruption? ठीक है, मेरा तो मान लो प्राइवेट गाड़ी है, बट कोई उबर वाला है, कोई ओला वाला है, उसके लिए तो सर्विस डिसरप्शन हो गया ना. वो सू कर देगा तुमको. मेरा रोज का 10,000 रुपया लॉस हो रहा है, तुम मेरी गाड़ी ले गए. ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी थॉट ऑफ बाय द चेंज मैनेजमेंट टीम. इट इज नॉट समथिंग कि ठीक है इंसिडेंट्स हो गए, फिर मैंने प्रॉब्लम का रूट कॉज एनालिसिस कर दिया, मैंने सोल्यूशन लिख दिया, चेंज मैनेजमेंट टीम ने implement कर दिया. ऐसा नहीं है. It has to be carefully thought of. Clear enough? Incident, problem, change. This is the three, or whatever, these are three phases, and some of the terminologies that we've covered are things which have to be managed very very carefully. And if you are managing them for all Dish TV users, that is lakhs and lakhs of users, you can't do it on paper. You can't do it on Excel. You need a system for that. And that system, one of those systems that you are going to be studying is ServiceNow. The whole purpose of me spending time today here was to give you a context कि ServiceNow करता क्या है, क्यों है, क्या है. I've got two more things that I want to touch upon very very quickly before we from tomorrow move into ServiceNow, and we are running out of time. But let me pause here for just any comments from Ashfaq, Yunus, or any one of you on anything so far before we move on to two more topics that I quickly want to cover, which is workflow and BPM. Please carry on. I don't have. Sorry, say again. No, I don't have anything. Please carry on. I think. All right. Anybody from anything from you guys, students? Anything that we've said so far? Nope. Okay. Some of the new terminology which has happened after the incident discussion is CMDB, SOP, knowledge management database, SLA, priority, severity, root cause analysis, and of course change management. ये सारी की सारी चीजें important हैं, और वो important क्यों है? That is the third point that I want to cover still today. So I want to cover still so far workflow, BPM, and the third mystery topic which I'll come to, which is very very important. Okay,
ये ITSM हो गया, right? I'll should I quickly go to the slides? No, I'll send you all the slides. You can go through the slides. It is basically definitions and all of that. Okay, so that you can go through on your own. So let me shut the slides itself. Okay. So what are the other two things that I wanted to cover? One is called a concept called workflow. Workflow is basically when you define a standard operating procedure या step by step flow of the process. Incidents resolve करने की हमारी process क्या है? Problems resolve करने की हमारी process क्या है? Change management की हमारी process क्या है? ये बार बार कोई सोचता नहीं है, ये किसी ने एक बार सोच लिया है और वो बना दिया है. इट्स नॉट कि एक बार सोच लिया वो बना दिया, वो कभी चेंज नहीं होता है जो करना ही पड़ता है, बट इट हैपन्स मे बी वंस अ ईयर, मे बी ट्वाइस अ ईयर कि नहीं यार ये इंसिडेंट मैनेजमेंट अपनी जो प्रोसेस है इसके अंदर अपन चेंज करते हैं. तो जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस इज मेड अप ऑफ ओनली टू थिंग्स, steps and decisions. Steps and decisions. So all of you are, I'm assuming, computer science students. So you already know the flow chart, right? Steps, steps, steps. बीच में एक diamond box आएगा, which is your decision. ये हुआ तो वो करो, वो हुआ तो वो करो. So in a very very basic terms, workflow is just definition of that process. कि incidents को हम कैसे resolve करेंगे. इंसिडेंट रिक्वेस्ट आया तो सबसे पहले हमारा सर्विस एजेंट या हमारा रोबो यूजर को बोलेगा ये करो, ये बटन दबा, लाइट बता, ये कर, वो कर, वो कर. उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये नहीं हुआ तो इस ब्रांच में जाएंगे, उसके बाद वो नहीं हुआ तो उस ब्रांच में जाएंगे. दैट इज अ वर्क फ्लो. एज सर्विस नाउ पीपल, you will be responsible for, at least at beginning level, you will be responsible for creating those workflows. You will not be responsible for defining those workflows. Defining those workflows will be you will be doing later on in your careers when you become service architects and all that. You will define that workflow, right? The service management workflow for car manufacturing company will be very different from service management workflow for a hospital or for a bank or for whatever, right? तो वो डिफाइन होगा, उसके बाद सर्विस नाउ में वो क्रिएट होगा, वो कॉन्फ़िगर होगा सर्विस नाउ में. ओके, और उसके अंदर सब कुछ चीजें कॉन्फ़िगर होंगी जो हमने अभी बात की है. CMDB भी बनेगा, नॉलेज बेस भी बनेगा, SLA भी डिफाइन होंगे, रिजॉल्वर ग्रुप भी डिफाइन होंगे, बहुत कुछ सारा डिफाइन होगा. दैट इज योर वर्कफ्लो. सो बेसिकली ServiceNow is a workflow system which is primarily used for IT service management, but ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, because it is a workflow system. Basically it's a workflow system. It can be applied to anything, no? जरूरी नहीं है कि ITSM ही करो उसमें. वर्कफ्लो सिस्टम है, बहुत अच्छा वर्कफ्लो सिस्टम है, यूजर फ्रेंडली है, फास्ट चलता है, सब कुछ अच्छा है. तो इससे ITSM ही क्यों करना है? दूसरी भी चीजें कर सकते हैं, और ये सर्विस नाउ को भी मालूम है कि दूसरी भी चीजें कर सकते हैं. इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, इसमें ITAM कर सकते हैं, इसमें ITOM कर सकते हैं, इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसमें हम एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल एंड समथिंग गवर्नेंस ये कर सकते हैं. इसके अंदर हम सेल्स भी कर सकते हैं, इसके अंदर जो चाहिए कर सकते हो, राइट? वर्कफ्लो सिस्टम, करेक्ट? सो दैट इज व्हाट ServiceNow is. It is basically a workflow system which comes pre-configured for a particular area, which is ITSM. But धीरे धीरे ServiceNow दूसरी भी चीजें इसमें ला रहा है, and that is what your future career growth is going to be. You are not going to be
systems administrators and ServiceNow developers for the rest of your life. Right? You will go into other modules which ServiceNow already has, and they are slowly bringing it in. In the end, ServiceNow के CEO ने खुद ने कहा है, in the end, ServiceNow is going to be an ERP, like an SAP or an Oracle or whatever, which is a software system which runs the entire company. Guys, you guys are sitting on a rocket that is going to take off. मैं उस रॉकेट पे बैठा था, उस रॉकेट का नाम था 20 साल पहले SAP. Okay, and I have had fun in my career, amazing career I've had. That is because I sat on the rocket called SAP. You guys are sitting on a rocket called ServiceNow, which is eventually going to turn into an ERP. ये मेरे को बताना बहुत जरूरी समझा मैंने कि आपको एग्जाम पास करना है CSA का, डेवलपर का, ये आज जो भी डिस्कशन हुआ उसका कोई तुमको फायदा नहीं, बट इट विल पुट यू इन द राइट माइंडसेट कि आपको नजर किस पे रखनी है, राइट? लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म, आपको नजर किस पे रखनी है. फॉर दैट ऑल ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विद दैट we've got another 5 minutes left, and I can continue for some time, but other people might have to drop off. So my third thing that I wanted to talk about is some housekeeping or administrative stuff. Right? After every lecture, there are going to be some assignments. So I just want to bring up the assignments very, very quickly. If you can tell me in the chat box if you can see my screen. Or Ashfaq, if you can tell me if you can see my screen. Yeah, I'm able to see. I'm able to see. Okay. So सबसे पहला, I just want to discuss the assignments, and the reason why we are doing it this way is, okay, we don't have time to talk about the reason why we are doing it this way. ये assignments करना क्यों जरूरी है, I will explain that in the next lecture. Okay, but these assignments have to be done before the next class, right? That is tomorrow. So first is, I'll of course share all of this and the presentation and all of that. The presentation has the assignments in it. First is root cause investigation. What is it? Provide a real world incident scenario. It could be anything. Okay, it could be dish TV, it could be dog in my house, it could be hospital, it could be anything. I will read the prompt for the assignment. Provide a real world incident scenario. Students should analyze the incident, identify potential root causes, and propose corrective action. यानी the full life cycle. क्या इंसिडेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, पोटेंशियल रूट कॉज क्या है, और प्रपोज करेक्टिव एक्शंस. ये आपको करना है. आई हैव गिवन सम गाइडलाइंस देयर, राइट? आपको मिनिमम 100 वर्ड्स लिखने हैं, मैक्सिमम 500 वर्ड्स लिखने हैं. बोनस पॉइंट्स फॉर साइटिंग सोर्सेज, रेफरेंसेस, टेबल, फिगर, डायग्राम. सोर्सेज, रेफरेंसेस मतलब ठीक है, पहला वाला है तो मैं बता देता हूँ. इफ यू गिव रेफरेंसेस कि नहीं ITIL में ऐसा लिखा है, ITSM के मैनुअल में ऐसा लिखा है, इसलिए मैंने ऐसा किया है, तो that will give you bonus points. Second assignment is a BPM tool evaluation. नहीं, ये गलत हो गया है, असाइनमेंट का नाम गलत हो गया, forget that, but the prompt is correct. Create a flowchart or a diagram illustrating a simple workflow. कोई भी एक workflow ले लो, whatever you've seen in your daily life, or whatever you want to invent, that is also fine, but make me a workflow. Make me a college admission workflow, make me whatever. College admission का क्या workflow होता है, right? People submit their mark sheets and then this happens and that happens, फिर ऐसा होता है. तो give me a workflow diagram. There are some bonus points for using something mysterious called BPMN. देखते हैं कितने लोग करते हैं. And last one,
is compare the workflow capabilities of at least 3 tools. One has to be ServiceNow and other 2 tools. दो tools का example मैंने दिया है आपको, Bizagi, Camunda, Run My Process, बहुत सारे, right? कोई भी एक ले लो, दो ले लो, but one of them has to be ServiceNow, and compare workflow और business process management के क्या दोनों में strong points है, weak points है and all that. So these are the 3 assignments which need to be done before tomorrow's class. And there is something else. There are some videos that I would like you to watch, and it will help you complete those assignments. And there are other things, which is to create a learning account on ServiceNow and all that, which you need not do for tomorrow. That we will pick up tomorrow. It will be the assignments after tomorrow's lecture. Create a ServiceNow account, etc., etc. Why? I mean, there was, I think, some students who were going to join from the US, etc. I don't think they are here. They would have been very, very familiar with this teaching methodology, which is project-based, activity-based, assignment-based learning. ये आप assignment करोगे, वहाँ पे आपका real learning होगा. तो ये assignments करने mandatory है. And I've given some passing scores for each of the assignments. It is not a competition. There is no prize for getting maximum marks, but there is a minimum criteria. Everybody must get those 3 points, 5 points, or 6 points. जो भी है नहीं मिलेंगे तो repeat करते रहना पड़ेगा जब तक मिलेंगे नहीं. Second point, feel free to collaborate. Absolutely feel free to collaborate. But that doesn't mean that I get 5 copies of one assignment. No, if 5 people are collaborating, I want 5 different copies. But everybody can collaborate. If I and Ashfaq are collaborating on assignment number 1, right? I can ask Ashfaq questions. He can tell me something. ये ऐसा कर, वो ऐसा कर, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं. But 2 अलग-अलग assignments submit. Okay. So these are some of the methodologies and rules how we are going to run this training. Maybe you guys right now feel कि ये बहुत ही अलग है, बहुत different है, but trust me, based on 25 years of my teaching experience, this will give you real learning, and we will review the assignments before the class tomorrow. Okay, so I'll in the WhatsApp group that you are there, I will post all of these assignments and presentations and all that, and you submit the assignments also as PDF documents on the WhatsApp group. Okay, that's it from me for today. Ashfaq, closing comments from you, and some closing comments from the students, some feedback in terms of good, bad, ugly, maja aaya, nahi maja aaya, stop this, continue this, etc. That's it from my side. Go ahead. So basically, we've kind of had pretty interactive session today. The engagement is little low at this moment, but slowly it will improve. Correct. So I wanted to see basically participation from all the members. Correct. And I think even though they don't want to speak, okay, they can put their queries on chat. So that interaction, and guys start using AI up to limit, frankly speaking. Okay. Don't hesitate to use AI. Because see, this is not the only basically ServiceNow course, correct? If you're not able to put your question, go put it in Gemini, Google Gemini, correct? Put it on ChatGPT, correct? Use basically AI to your benefits. That's the kind of. Ashfaq, thank you very much. This is some point that I had made a note of. I'm going to mention this. Collaboration is allowed and encouraged. AI, ChatGPT, and all that is allowed and encouraged, but it has to be acknowledged. Yeah. It has to be acknowledged. Yeah. Right. That is the fair use policy. Right. But that's I think that's the right thing the individual has to do. That's the way to go.
if you're not going to use it, you will be out of basically you will be treated as a basically basically outdated or kind of, I would say, what I तुम्ही म्हणजे जमान्याबरोबर चाललेलं नाही थोडक्यात, किंवा काळाबरोबर चाललेलं नाही थोडक्यात असं म्हटलं जाईल. तर यू हॅव टू यूज, take the benefits of ChatGPT. If you're not able to put questions, put it on ChatGPT. Ask ChatGPT what I should say here, correct? But don't hesitate asking any questions. If you're not able to speak, use ChatGPT. आमच्या वेळेस हे काहीच नव्हतं. आता तुमच्या वेळेस सगळं काही आहे. तुम्हाला अडचण येत असेल तर तुम्ही ChatGPT वर जावा, गुगल जेमिनी वापरा, विचारा मला काय प्रश्न विचारायचा. इंग्लिश जर थोडंसं अडखळत असेल, तिथे अडखळत असेल, यूज ChatGPT फॉर युअर बेनिफिट्स. दॅट्स माय सजेशन बेसिकली. Shahrukh has 2 questions. You have to complete all the assignments before the next class. Yes, but feel free to collaborate. Feel free to use ChatGPT and all of that. But acknowledge. Yeah. Okay, that's fine. And who will check the assignments? I will check the assignments. Yeah. Okay. Or between myself, Ashfaq, and Yunus, we will check the assignments. So we haven't introduced Yunus. Yeah. So I started classes. Guys, so Sorry, we have to write the assignment in a notebook. No, I want the assignments back as a PDF. Okay. Okay. Even if you write it by hand, please take a photograph, scan it, and send it to me as a PDF. Yeah. So before closing, Sanjeet, I just wanted to introduce Yunus. I haven't introduced because I think since you went away, I took an opportunity, started with a basic discussion around what is ServiceNow, or not what is service management and what we are going to teach. So we have Yunus. Okay. He will be a mentor. He will be kind of guiding you throughout this program. Once we will complete our job, first few sessions will manage between basically Sanjeet and me, because those are the areas where we are experts, correct? So we've been in the industry almost for 30 years now, correct? And that's our basically bread and butter for last 30 years. So that's our strength. That's our basically in a core area. So ITSM part, and this is very, very critical, because we can start teaching you ServiceNow, but it will not help you. It doesn't make sense at all unless and until you understand terminologies like incident, problem, change, correct, and their use in day-to-day life, correct. Then only we'll be able to implement ServiceNow for any company or any service provider, correct, right? So Yunus, welcome on the board, and you'll be basically going to take ahead the discussions after, I think, 6 to 7 days. Sanjeet, you have kept it for ITSM. What's the plan at this moment? Because so I have planned on the content, but I have not planned on the days. Okay. I don't know, maybe 3-4 days. Okay, no problem. So let's assume that from next week, Yunus is going to take over. But first few sessions, at least 5-6 sessions, till we make sure that everybody on this call understand ITSM at some extent, correct? Not expert as an expert, okay, but at least individual should understand and able to categorize what is incident, what is service request, what is change request, what is problem, correct? At least basic understanding should be there, correct? A quick feedback from the participants, please, from the students. मजा आया, नहीं मजा आया, बोर हो गया, ऐसा नहीं करो, वैसा करो. Feel free. आपका ही लेक्चर है. So I have a question regarding the assignment. Yes, go ahead. So in the first assignment, we have to provide a real life scenario. So are we talking about a hypothetical scenario or a documented? No, hypothetical. Hypothetical. Okay. So basically, that's why I started with the dog analogy, right? I don't have an ITSM system at home to manage my dog. Yeah. But it uses the same concepts. It can be anything. It can be McDonald's, it can be your kitchen, it can be anything. But it has to highlight the concept of
incident, problem, change, root cause, whatever. बट मैं बार बार पूछ रहा हूँ यार, कोई तो फीडबैक दो मुझे, स्टूडेंट्स। अच्छा दो, बुरा दो, कुछ तो बोलो। Yeah. Hey, that's okay, Sanjit. I think it's well Shahrukh done. says regular time, good lecture. Yes, regular time, and thank you. I'm glad that you liked it. The impact of you saying good lecture is you will get more of the same tomorrow as well. If you want me to change, then you tell me, नहीं नहीं ये कुत्ते बिल्ली का एग्जांपल मत लो, कुछ भी फीडबैक दो यार, तो it will change. ठीक है? Yeah. Keep it calm. Actually, lecture was good, but the Marathi part was not good for me. Oh, thank you, Pooja. Thank you. I Pooja. don't This is understand very, Marathi. very important. Okay. Sorry, Pooja. या तो आपने We इंसिडेंट haven't realized that. रेज किया, हमने प्रॉब्लम एनालाइज किया कि यार नॉट एवरीबॉडी नोज मराठी, तो इसको हम चेंज इंप्लीमेंट करेंगे कि कल से हिंदी और इंग्लिश में करेंगे। Yes, thank you. थैंक यू। ठीक, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। लेट्स वाइंड अप। Assignments, recording of this lecture, everything will be on the WhatsApp group. See you all. See you. Thank you. Bye.